Rahim. The topic we will discuss is the posterior compartment of forearm. The posterior compartment of forearm, in this compartment we will discuss the muscles of the back of the forearm, and the nerve of the posterior compartment is known as the posterior interosseous nerve. And the arteries which are supplying this compartment are the posterior and anterior interosseous arteries. So we will discuss all these things one by one. First of all, the muscles of the back of the forearm. The muscles of back of the forearm are divided into superficial and deep. The superficial muscles are 7 in number, while the deep muscles are 5 in number. First of all, you should know the name of these muscles, superficial muscles. Brachioradialis, extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis. Radialis mean present on the radial side, and extensor mean because the function is to extend, and the longus mean it is long, and the brevis mean it is shorter. The extensor digitorum mean this muscle causes the extension of the digits. Extensor digiti minimi mean this muscle causes the extension of the little finger. Extensor carpi ulnaris mean this muscle causes the extension on the side of the ulna. And the last one superficial muscle is the anconeus. तो बताने का मकसद ये है कि the name of these muscles indicating their functions. So use your common sense. Now this compartment, superficial compartment, which consists of 7 muscles, all you can see this compartment is divided into medial. These superficial muscles are further divided into the medial and lateral compartment. This is the lateral group and this is the medial group. चलो medial group इस तरह बेशक ना भी याद हो, लेकिन इसमें कुछ एक important चीजें होनी चाहिए. The 4 superficial muscles which extensor carpi radialis brevis, extensor carpi radialis brevis, extensor digiti minimi, extensor digiti minimi, this one, ये वाली जो एक रो पूछा रहा है, extensor digiti minimi and extensor digitorum and extensor carpi ulnaris. These 4 muscles, they are arising from they have a common extensor origin. मैंने आपको पिछले लेक्चर में कॉमन फ्लेक्सर भी पढ़ाया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. They have common extensor origin from the tip of the lateral epicondyle, because they are present on the lateral side of the humerus, called the common extensor origin. So they arise from this point. Insertion हर एक की अलग होगी. 3 deep extensors of the forearm. अब देखो कौन से इसमें से, ये देखो ये कौन से निकल रहे हैं. एक एब्डक्टर पॉलिसिस एंड ये डीप में असल में डीप मसल्स हैं. अब ये 3 मसल जो डीप हैं, एब्डक्टर नाम से देखो, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus, mean they are going to pollicis used for the thumb. These muscles, मैंने आपको क्या कहा, these superficial muscles divided into medial and lateral compartment, and these muscles emerge coming out from the junction of the medial and lateral compartment, coming out and goes towards the thumb. So this is these 3 muscles are therefore termed as the outcropping muscles. आपको इतना नाम पता हो कि which muscles are called the outcropping muscles. तीनों ही पॉलिसिस की तरफ जा रही हैं. एक कौन सी मूवमेंट करवाएगी, एब्डक्टर, एक एक्सटेंसर, और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ये ब्रेवस है और ये लॉन्गस है.
ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए कि भाई ये हालांकि डीप मसल्स हैं, दे ये पास हो रही हैं, लेकिन इनके ग्रुप से पास हो रही हैं बीच में मीडियल और लेटरल, इस वजह से मैंने आपको बताया। अब मैंने ये जो आपको बताया है कि भाई सुपरफिशियल मसल्स 7 मसल्स हैं, फिर ये मीडियल एंड लेटरल कंपार्टमेंट में डिवाइड होती हैं। तो मीडियल एंड लेटरल कंपार्टमेंट की मसल्स के नाम बेशक अलग ना भी करो, तो कम अज़ कम इतना पता हो कि 7 सुपरफिशियल मसल्स जो है फोर आर्म की, बैक की, उनके नाम क्या हैं। ठीक है, और उसमें से कॉमन जो एक्सटेंसर ओरिजिन वो ले रही हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, अच्छा नाउ सेपरेटली मैं कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स बताऊंगी, क्योंकि बुक में वैसे टेबल तो हर चीज़ की बनी हुई है, लेकिन मैं जो सेपरेट कुछ अहम है, दिस इज द ब्रेकियोरेडियलिस, दिस इज ब्रेकियोरेडियलिस। तो ब्रेकियोरेडियलिस इज द सुपरफिशियल मसल ऑफ द बैक ऑफ द फोर आर्म। दिस मसल यू कैन सी दिस, दे आर अराइजिंग फ्रॉम, ये ह्यूमरस है ऊपर, ठीक है, ये रेडियस है, ये अल्ना है। तो ये ह्यूमरस के मीडियल एपिकंडाइल के अपर पार्ट से, सुप्राकंडाइलर लाइन से, अपर 2/3 ऑफ द लेटरल लेटरल पार्ट से, क्योंकि पीछे से ये दिखा है। ठीक है, तो क्योंकि कैपिटुलम है, कैपिटुलम इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड, सो दे अराइजेस फ्रॉम द लेटरल upper 2/3 of the lateral supracondylar ridge, and it is going to be insert on the lateral side of the distal end of the radius, just above the styloid process. This is the styloid process, just above the styloid process it is inserted here. Now the nerve supply by the radial nerve, and this is the muscle present on the lateral side, so it has different functions. Mean it also flexes the elbow, pronate the supinator forearm mid prone से, जैसे आधे में ऐसे आप जैसे हाथ मिलाते हो, दिस इज द मिड प्रोन पोजीशन, उससे आपको सीधा करने में हेल्प करती है ऊपर की तरफ। सुपिनेट द प्रोनेटेड फोर आर्म टू मिड प्रोन पोजीशन, मीन उसी मिड प्रोन वाले को सुपिनेट एंड प्रोनेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, हाथ जैसे मिलाते हो ऐसे रखो, और फिर ऊपर ले गए तो सुपिनेट, नीचे ले गए तो प्रोनेट, तो इसका ये फंक्शन है। नाउ दी एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और पेरिब्रेविस, ये दोनों करते हैं। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, दिस इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, दिस वन, ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। अब यहाँ पे आप देखो, दिस इज द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, कहाँ से ओरिजिन हो रही है, कॉमन एक्सटेंसर के ऊपर से सुप्राकंडाइलर लाइन, सुप्राकंडाइलर लाइन ऑफ द लेटरल सुप्राकंडाइलर लाइन, वहीं से अराइज हो रही है। ठीक है, ओरिजिन इंसर्शन इतनी अहम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, नाउ इट इज इंसर्टेड, यहाँ पे देखो क्या है, ये इंसर्ट हो रही है। इंसर्ट कहाँ पे, लेटरली है तो लेटरल साइड। अब यहाँ पे फर्स्ट को छोड़ के सेकंड, मेटाकार्पल बोन, दिस इज द मेटाकार्पल, बेस ऑफ द मेटाकार्पल, देखो ये हेड पे नहीं, बेस ऑफ द मेटाकार्पल, यहाँ पे इंसर्ट होगी। नर्व क्या है पीछे की, रेडियल नर्व, तो इट इज क्रॉसिंग द रिस्ट जॉइंट, तो इसका मतलब है इट इज एक्सटेंसर ऑफ द रिस्ट जॉइंट। फ्लेक्सर ऑफ द कार्पाई रेडियलिस के साथ मिलके फ्लेक्सर थोड़ी कर लेती है, लेकिन मेनली इट इज द एक्सटेंसर ऑफ द रिस्ट जॉइंट। नाउ द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, दिस वन, पीछे देखो, extensor carpi radialis brevis, extensor, this one is the extensor carpi radialis which has origin from the lateral condyle epicondyle of the humerus, जो कॉमन एक्सटेंसर की ओरिजिन थी, ओरिजिन तो यहीं से लिया। देन इट इज इंसर्टेड बाय टू स्लिप at the base of the second and third metacarpal, at the base of the second and lateral side of the base of the second and third metacarpal। lateral side ना भी याद रखो तो आप ये याद रख लो, at the base of the second and third metacarpal। its nerve supply is posterior interosseous nerve before piercing the supinator। मैं इस nerve supply कौन सी है इसकी, अब मैं आगे बताऊंगी कि पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व वगैरह डायग्राम आगे दिखाऊंगी, क्योंकि इस कंपार्टमेंट की नर्व भी दिखाऊंगी, तो उसमें नर्व से याद कर लोगे तो इनकी नर्व सप्लाई खुद ही याद हो जाएगी। ठीक है, फंक्शन इसका भी तकरीबन वही है जो उसका था, एक्सटेंसर ऑफ द रिस्ट मेनली।
यहाँ पे इस डायग्राम में अगर देखना चाहो तो इन मसल्स की ओरिजिन मैंने एहतियातन आपको दिखा दिए कि ये सुप्राकंडाइलर लाइन है जिसमें ये मसल्स ओरिजिनेट हो रही है जहाँ से. नाउ द डीप मसल्स which are 5 in number. Number 1 supinator, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus, extensor index finger की तरफ. ठीक है, these are the deep muscles. अब देखो ये रही वो डीप मसल. तो ये सारी कहाँ से ओरिजिन हो रही है? इधर से अल्ना से हुई रेडियस की तरफ जा रही है, अल्ना से हुई रेडियस की तरफ अल्ना, एंड ये बीच में क्या है दोनों को जोड़ने के लिए इंट्रोशियस मेम्ब्रेन. तो यहाँ से भी ओरिजिनेट होंगी. तो क्या लिखा हुआ है? नन ऑफ द डीप मसल ऑफ द बैक ऑफ द फोरआर्म क्रॉसेस द एल्बो जॉइंट. देखो ये एल्बो जॉइंट के पास कोई भी नहीं है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसका मतलब इसका इनका एल्बो जॉइंट पे कोई एक्शन नहीं होगा मोस्टली. ऑल ऑफ देम अराइज फ्रॉम रेडियस, अल्ना एंड द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन. एंड ऑल ऑफ देम, बहुत आसान है, दे आर सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व विच इज ए डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व. तो ये याद हो गया. तो हर एक मसल की अलग अलग याद करने की तो जरूरत नहीं है. ठीक है. नाउ दी